Hey friends, in this video we are going to study about gel electrophoresis. Gel electrophoresis is mainly of two different types, which is agarose gel electrophoresis and the other one is SDS-Page discontinuous gel electrophoresis. We have already done SDS-Page, which is sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. This we have done in the Western blotting technique for the detection of specific proteins in a sample. However, agarose gel electrophoresis is a technique which is used to separate nucleic acid in southern and northern blotting. So basically in southern and northern blotting, for the detection of specific fragment of DNA or RNA, we use agarose gel electrophoresis. Now first of all, we need to know that what is electrophoresis. So basically electrophoresis is a separation technique which is based on the movement of charged particles such as amino acids, proteins, nucleic acids like DNA, RNA in an electric field. Here we mainly talk about gel electrophoresis, in which we use a kind of gel and the use of electric current to separate the specific proteins or whatsoever we are searching for in a sample. We separate them through electrophoresis. So here we use certain kinds of gel for the separation, and we have two major kinds of gel, which is agarose gel and polyacrylamide gel. Polyacrylamide gel is used in SDS-Page where the pore size is very small, the gel having a pore size, very small pore size, and here we use protein separation on the basis of molecular weight. On the other hand, in this video we mainly focus on the agarose gel electrophoresis, in which we use agarose powder for making the gel, and the pore size of this gel is large as compared to polyacrylamide gel. Here in agarose gel electrophoresis, we mainly separate the fragments of DNA or RNA on the basis of their sizes. So here in the previous video we have discussed that blotting techniques are mainly of three types, which is southern, northern and western, in which we have already discussed about western blotting. But over here we can see in southern and northern blotting we detect DNA and RNA, for which agarose gel electrophoresis is required. So here let's begin with the gel electrophoresis, mainly agarose gel. First of all, we need to prepare the agarose gel for the electrophoresis. So we need agarose powder, which is a kind of polysaccharide. So this powder is actually mixed with the buffer, which is TAE or TBE buffer. TAE is tris base acetic acid EDTA or tris base boric acid EDTA. These are the buffers which are added with the agarose powder, and then we mix the solution and boil it for the 2 minutes. तो 2 मिनट तक के लिए हम क्या करते हैं, TAE या TBE बफर लेते हैं और उसको एग्रोस पाउडर के साथ मिक्स करके उसको बॉईल करते हैं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर द एग्रोस जेल रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सैंपल. हमें डीएनए या आरएनए का सैंपल जो है वो चाहिए होता है. पर्टिकुलरली हमें वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की डिटेक्शन करनी है जो कि डीएनए या आरएनए की हमारे पास सैंपल के अंदर होती है. और सैंपल की जो तैयारी है वो हम पीसीआर यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से भी कर सकते हैं, या सिंपली हम किसी भी सैंपल से जो है डीएनए या आरएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू agarose gel electrophoresis. Now in this gel preparation we have seen that we need to mix the agarose powder with this buffer and boil it for 2 minutes. After boiling we need to cool down the solution up to 50 degrees Celsius, and then we need to add a solution on a casting tray. तो इसको बनाने के बाद, इस जेल को प्रिपेयर करने के बाद इसको हमने 50 डिग्री तक कूल डाउन करना है और फिर इस सॉल्यूशन को हमने ऐड करना है कास्टिंग ट्रे के अंदर. तो ये एक डायग्राम है जो एक कास्टिंग ट्रे की तरह मैंने रिप्रेजेंट किया है. एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, ट्रे की तरह होती है, और इस ट्रे के अंदर हम पूरी तरीके से एग्रोस सॉल्यूशन को पोर कर देते हैं. अब हमें देखना है कि जो एग्रोस सॉल्यूशन हमने पोर किया है उसमें हम क्या करते हैं, कास्टिंग ट्रे के एक साइड हमने वेल्स बनानी होती हैं जिसके लिए हम कॉम्स का इस्तेमाल करते हैं. तो थ्रू द कॉम्स, ये
प्लास्टिक की फ्रेम की तरह होती हैं, तो ये इस तरह से कॉम्स होती हैं। इन कॉम्स की मदद से जो है हम एग्रोज सॉल्यूशन को पॉर कर देते हैं। और जो कॉम है, जब ही हम कॉम को रिमूव करते हैं तो उसके बाद ये वेल्स जो है वो नीचे रह जाती हैं बनी हुई, और ये जो वेल्स होती हैं हमेशा कैथोड एंड वाली साइड ही होती हैं। कैथोड एंड जो होता है नेगेटिव एंड होता है, और एनोड यहाँ पे पॉजिटिव एंड इस साइड पे होता है। कैथोड की साइड ही वेल्स क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि कैथोड नेगेटिव है और डीएनए जो हम इस्तेमाल करेंगे सैंपल में डिटेक्शन के लिए वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रोज सॉल्यूशन इज पॉर्ड विदाउट बबल फॉर्मेशन। हमने अभी जो सॉल्यूशन तैयार किया है एग्रोज जेल का, उसे हम पॉर करते हैं कास्टिंग ट्रे के अंदर विदाउट एनी बबल फॉर्मेशन, एंड देन वी कीप इट एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 to 20 मिनट्स। तो पॉर करने के बाद कोई भी बबल नहीं बनना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक हम उसे जो है रूम टेम्परेचर पे उस जेल को हम रहने देते हैं, उस सॉल्यूशन को हम रहने देते हैं। हम तब तक इसका वेट करते हैं सॉल्यूशन का जब तक ये सॉलिडिफाई ना हो जाए। तो हम पूरी तरह से जो है एग्रोज सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई होने देते हैं और हम कॉम्ब के थ्रू जो है एग्रोज सॉल्यूशन को कास्टिंग ट्रे के अंदर डालते हैं। यानी कि ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने पूरा का पूरा एग्रोज सॉल्यूशन डाल दिया और यहाँ हम कॉम्ब लगा देते हैं। तो कॉम्ब लगाने का मकसद यही है कि यहाँ पे वेल्स फॉर्म हो जाएं जिसमें हम अपनी सैंपल को लोड कर सकें। तो यानी कि आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग्रोज सॉल्यूशन we just remove the comb, and what we observe is that wells are formed, and wells are always formed towards the cathode end, right? After the formation of wells हमें क्या करना है, ये जो कास्टिंग ट्रे है इसको हम डाल देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के अंदर। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में क्या होता है, हमारे पास एक कैथोड और एनोड एंड होते हैं। इलेक्ट्रिक यूनिट होती है जहाँ से जो है सर्किट जो है कैथोड एनोड का जो है लगा रखा होता है। एक कैथोड एंड होता है, एक एनोड एंड होता है, उसके बीच में हम अपनी कास्टिंग ट्रे डाल देते हैं और इस तरीके से डालते हैं कि जो यहाँ पे वेल्स बनी होती हैं वो कैथोड एंड की साइड पे आती हैं, राइट। उसके बाद हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के अंदर जो है इस पूरी जेल को जो है हम डिप कर देते हैं बफर की सॉल्यूशन के अंदर, विच कैन बी TAE और TBE बफर। So now in electrophoresis unit, TAE or TBE buffer is added or filled so that the gel, agarose gel gets dipped. तो ये जो हमने एग्रोज जेल कास्टिंग ट्रे के अंदर डाली है, अब इसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में डाला और उसके डालने के बाद हमने पूरे के ऊपर क्या डाल दिया, TAE या TBE बफर को ऐड कर दिया। यहाँ पे हम अभी इस बफर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज TAE और TBE बफर। तो अगर इसको एक्सपैंड करें, दिस इज ट्रिस बेस एसिटिक एसिड EDTA एंड दिस वन इज ट्रिस बेस बोरिक एसिड EDTA। तो यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट लिख रखी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2 मोलर कंसंट्रेशन। TA is tris base, A is acetic acid and this is EDTA which is used normally 0.5 molar EDTA 100 ml में, और pH इसका जो है 8 रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो EDTA है उसका क्या रोल होता है या ट्रिस बेस का क्या रोल होता है, तो ट्रिस बेस जो है हमारे पास एक बफर की तरह होता है जो कि हमारा pH जो है वो मेंटेन करता है जेल का। उसके बाद ये जो EDTA है, EDTA इज इथाइलिन डायअमाइन tetra acetic acid. So this is ethylene diamine tetra acetic acid. This EDTA is actually a chelating agent. ये क्या करता है, ये जो मेटल्स होते हैं हमारे सैंपल के अंदर, जो मान लेते हैं कि अगर हम DNA को हम सैंपल के अंदर ऐड कर रहे हैं तो जो DNase एंजाइम होता है वो DNA को डिग्रेड ना कर दे, उससे बचने के लिए हमें एक चिलेटिंग एजेंट डालना है। और चिलेटिंग एजेंट क्या करता है, किसी मेटल आयन को अपने सेंटर में चिलेट कर लेता है। या जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है को फैक्टर की तरह काम करता है DNase एंजाइम के साथ और वो DNA को खराब कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है उसके फ्रेगमेंट्स को। तो DNase एंजाइम की वर्किंग को रोकने के लिए मैग्नीशियम को फैक्टर को रोकना जरूरी है, उसके लिए हम EDTA का इस्तेमाल करते हैं। सो EDTA इज बेसिकली ए चिलेटिंग एजेंट। Also, it is used in medicine to prevent blood samples from clotting and remove calcium and lead from the body. And it is white water soluble solid. यहाँ पे हम ट्रिस बेस एसिटिक एसिड जो है इसका काम क्या होता है, ट्रिस बेस एंड एसिटिक एसिड का, ये मेंटेन करते हैं न्यूट्रल pH को। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, EDTA is a chelating agent which chelates magnesium which is the cofactor of DNase enzyme.
तो ये दोनों मिलके जो है डीएनए को खराब ना कर दें सैंपल के अंदर, इससे बचने के लिए ईडीटी को ऐड किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम कौन से बफर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम टीएई और टीबीई में से टीएई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो टीबीई है इसमें जो बोरेट होता है वो रिएक्ट कर जाता है शुगर बैकबोन से डीएनए की, और ये जो है ग्लिसरोल से भी रिएक्ट करता है और डिक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ लोडिंग डाई। अब ये हम ग्लिसरोल और लोडिंग डाई यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, लेट्स सी। सो बेसिकली हम वेल्स के अंदर जो है सैंपल डालेंगे। अब ये जो वेल्स के अंदर सैंपल डालेंगे वो अकेला हम डीएनए नहीं डालते, हमारे पास अगर डीएनए सैंपल है तो उसके साथ हम ग्लिसरोल भी डालते हैं ताकि उस डीएनए सैंपल को कुछ विस्कोसिटी मिल सके। उसके अलावा हम डीएनए सैंपल को किस तरीके से ट्रैक करेंगे, हम उसे किस तरीके से देख सकते हैं, तो उसकी विजुअलाइजेशन के लिए हम एक लोडिंग डाई डालते हैं विच इज कॉल्ड एज इथीडियम ब्रोमाइड। तो क्योंकि डीएनए सैंपल हमें दिखे, डीएनए के बैंड्स हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर या एग्रोस जेल के अंदर हम देख सकें, तो बैंड्स को देखने के लिए हम एक लोडिंग डाई जो है वो सैंपल के अंदर ही डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। Now this ethidium bromide basically it intercalates between the nitrogenous base of DNA and fluorescent under UV light. तो basically it intercalates between the nitrogenous base of DNA. तो DNA के nitrogenous base के बीच में intercalate करता है, और इथीडियम ब्रोमाइड को जैसे ही हम UV लाइट के अंदर रखते हैं तो ये फ्लोरिसेंट एक्शंस जो है हमें शो करता है, जिससे हमें हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स या बैंड्स जो बनते हैं ग्रोस जेल पे वो दिख जाते हैं। नाउ जैसे ही ये पूरा का पूरा हमने सैंपल प्रिपेयर करके वेल के अंदर डाला, तो हम क्या करते हैं, जो पहला हमारा वेल होता है कैथोड साइड पे, जो पहला हमारा वेल होता है उसको हम डीएनए लेडर बोलते हैं, जिसमें हमारे नोन फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जिसके साथ हम अपने सैंपल के बैंड्स को कंपेयर करते हैं, right? So after loading sample in the wells, leaving the first well which contains DNA ladder means known fragment of DNA. तो known fragment of DNA पहले वेल के अंदर हमारे पास DNA ladder होता है, और बाकी वेल्स के अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं so that we can compare it with DNA ladder. उसके बाद हम करंट अप्लाई करते हैं, कैथोड एनोड हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में, तो वोल्टेज हमारी यूजुअली होती है 80 to 150 वोल्ट। उसके बाद हम सीधा जैसे ही बैंड्स आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, नाउ एक्सपोज द जेल इन यूवी लाइट टू व्यू द बैंड्स। क्योंकि हमने इथीडियम ब्रोमाइड डाल रखा है, तो जैसे ही हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाती है, बैंड्स बन जाते हैं, उसके बाद उन्हें विजुअलाइज करने के लिए हम उसे यूवी लाइट के अंदर रखते हैं टू व्यू द बैंड्स। और उसके बाद हम जो है लेंथ ऑफ डीएनए इज डिटरमाइंड बाय मैचिंग इट विद द लेडर डीएनए। तो जो पहले वेल के अंदर हमने लेडर डीएनए डाला था, उसकी जो बैंड पैटर्न आएगी उससे हम मैच करते हैं बाकी सैंपल्स के पैटर्न को। तो इस तरीके से हम अपने नॉन फ्रेगमेंट को या डीएनए जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, and we use this technique in both northern and southern blotting. So we will continue this blotting technique in the further videos. I hope that you like this video. If you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.